Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, I'm going to teach you a computer lesson. Let's learn computer. Friends, I'm sure you must have seen computers either at your schools or at your home, and the computer must have fascinated you. So, in the upcoming videos, I'm going to teach you everything about computers. So, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीजें समझ पाएंगे. डिफरेंस बिटवीन नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स एंड मशीन्स. देन वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मशीन्स. विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्यूटर एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर. नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. ट्राई टू आंसर देम. हु आर यू? आर यू अ मशीन और अ ह्यूमन? तो फ्रेंड्स, क्या आप एक मशीन हो या एक ह्यूमन हो? यस, हम सब एक ह्यूमन हैं, यानी हम एक इंसान हैं. व्हाट डू यू ईट? और हम क्या खाते हैं? हम फूड खाते हैं. द पॉइंट टू दिस क्वेश्चन इज कि क्या हम खाते हैं? वेदर डू वी ईट? ये पूछना चाह रहे हैं हम इधर. यस, सिंस वी आर ह्यूमन वी डू ईट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. Our first topic is natural and man-made things. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिफरेंस समझेंगे कि नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं और मैन-मेड थिंग्स कौन सी होती हैं. So here look at this picture. What can you see here friends? क्या क्या दिख रहा है आपको इधर? Here we can see trees. We can see these kids. There is a dog. Grass is also here. Then water and house. तो काफी सारी चीजें हमें इस पिक्चर में देखने को मिल रही हैं. So here things such as trees, water, dog, grass, they are made by nature. So these things are called as natural things. So things such as trees. तो चीजें जैसे कि पेड़, पानी, डॉग, ग्रास, यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं, ये सभी चीजें फ्रेंड्स दे आर मेड बाय नेचर. So these things are called as natural things. So whatever things are made by nature, यानी जो प्रकृति खुद बनाती है, हम इंसान नहीं बनाते, प्रकृति खुद उन चीजों को बनाती है. Such things are known as natural things. ओके आप अपने घरों में भी अपने आसपास देखेंगे तो अपने घर के आसपास भी आपको ट्रीज दिखाई देते हैं, फ्लावर्स दिखाई देते हैं, बर्ड्स दिखाई देते हैं, एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, ये सब दिखाई देते हैं. So all these are natural things. These are made by nature. But things such as house, fence, clothes, bag are made by human beings. These things are called as man-made things. But friends, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हाउस, ये बच्चों ने कपड़े पहने हैं, बैग कैरी जो करा हुआ है, ये जो पीछे फेंस है, all these things are made by us, by humans. So such things which are made by human beings, they are known as man-made things. तो जो चीजें हम इंसान बनाते हैं, उन चीजों को कहते हैं man-made things. So now I'm sure you are able to understand the difference between two. So what are natural things? Things which are made by nature, and man-made things which are made by human beings. Right? Let's move further. Next, we are going to understand about machines. Machines around us. So first of all, what are machines? Some man-made things which make our work faster and easier are called as machines. So first important point regarding machine is that it's a man-made thing. ये कोई natural चीज नहीं है, कोई nature ने मशीन नहीं बना के दी है हमें कोई भी, हम humans ने बनाई है machines. And why do we need machines? Because they make our work faster and easier. हम मशीन की हेल्प से अपने काम को जल्दी और आसानी से कर पाते हैं. ठीक है? So machines are man-made things which make our work faster and easier. Now types of machines. अब machines भी अलग अलग टाइप की होती हैं. कुछ होती हैं manual machines और कुछ होती हैं electronic machines. So I'm going to tell you the difference between these two types of machines. First is manual machine. अब manual machines क्या होती हैं? These type of machines require human efforts to work.
तो फ्रेंड्स ये जो मशीन्स होती हैं मैनुअल मशीन्स, ये इनको ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए। ह्यूमन एफर्ट्स यानी कि हम लोगों को वो मशीन चलानी पड़ती है, हमें अपना ज्यादा एफर्ट उसमें डालना पड़ता है जब वो मशीन काम करती है। फॉर एग्जाम्पल स्विंग मशीन, ग्रेटर, बाइसिकल और रिक्शा। यहाँ पे मैंने आपको कुछ मैनुअल मशीन्स के एग्जाम्पल शो करे हैं। स्विंग मशीन क्या होती है? आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन योर मदर और अ टेलर यूजिंग अ स्विंग मशीन, जो कपड़े सीने में काम आती है स्विंग मशीन। तो यहाँ पे हमें उसको चलाना पड़ता है, वो साथ साथ काम करती है। फिर यहाँ पे देखिए ग्रेटर है, ये किचन में यूज करते हैं हम लोग। यहाँ इससे हम वेजिटेबल्स को ग्रेट करते हैं, घिसते हैं। तो यहाँ पे भी हमें काफी एफर्ट लगाना होता है, अपना ह्यूमन एफर्ट काम आ रहा है इधर। सिमिलरली बाइसिकल, जैसे कि आपके पास बाइसिकल है या ट्राइसाइकिल है, तो आपको ह्यूमन एफर्ट से उसके पेडल चलाने होते हैं, देन ओनली द बाइसिकल विल वर्क, है ना। बिना पेडल चलाए तो वो काम नहीं करेगी ना, वो तो एक ही जगह खड़ी रहेगी। और इसी तरह से रिक्शा होती है, रिक्शा में भी रिक्शा पुलर को he has to pedal the rickshaw, otherwise rickshaw won't go further. So manual machines are the machine which require human efforts to work. Now next type of machines which we are going to understand are electronic machines. These type of machines require electricity to work. अब फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की जरूरत होती है काम करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी सो दीज इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वोंट वर्क। फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम क्लीनर, फैन, मिक्सर, वॉशिंग मशीन। तो ये जितनी चीजें हैं, ये जितनी मशीन्स हैं, इन सभी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम वैक्यूम क्लीनर से अपने घर को क्लीन नहीं कर सकते, हम फैन ऑन करके नहीं बैठ सकते अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो। सिमिलरली हम किचन में मिक्सी यूज नहीं कर सकते, और ना ही हम अपने क्लोथ्स वॉश कर सकते हैं वॉशिंग मशीन में। ठीक है, तो मैनुअल मशीन्स को तो ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए काम करने के लिए। तो दो टाइप ऑफ मशीन्स बताई हैं मैंने यहाँ पे आपको। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कंप्यूटर। Now friends, we have understood manual and electronic machines. So can you tell me if computer is a manual machine or an electronic machine? Yes, tell me fast. Yes, it's an electronic machine. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि अगर बिजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कंप्यूटर काम नहीं करता। थोड़ा बहुत बैकअप होता है बट ज्यादा देर काम नहीं कर सकता बिना इलेक्ट्रिसिटी के। So computer is also a machine. It's an electronic machine. We are surrounded by the most advanced machines and one of such most popular machines is the computer. So friends, सबसे popular machine आजकल क्या है? कंप्यूटर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर या लैपटॉप्स। हमारे स्कूल्स में या हमारे घरों में, ऑफिसेस में, हर जगह कंप्यूटर या लैपटॉप होता ही होता है, राइट? क्या आपके स्कूल में कंप्यूटर रूम है? आपने देखा है वहां पे ऐसा कंप्यूटर? देखा है ना? यस। तो कंप्यूटर बहुत जरूरी है हम सभी की लाइफ में आजकल, इसके बिना हमारा काम करना बहुत मुश्किल है। सो लेट्स लर्न अबाउट कंप्यूटर। A computer is an electronic machine that is used for storing and processing information. So as I said earlier, computer is an electronic machine. अब कंप्यूटर का यूज क्या होता है? It is used for storing information and processing information. तो कंप्यूटर से फ्रेंड्स हम एक तो अपनी इंफॉर्मेशन, हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम स्टोर करवा सकते हैं और उससे वो प्रोसेस भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है ये आपको आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगी, आगे के इनकमिंग चैप्टर्स में आपको समझ में आएगा कि प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है। एज ऑफ नाउ इन दिस चैप्टर यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम डेटा, अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और उसे प्रोसेस करवा सकते हैं। अ कंप्यूटर लुक्स लाइक आवर टेलीविजन सेट बट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मेनी मोर टास्क एट वंस। सो लाइक फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर, ये जो है कंप्यूटर, ये आपको एक टेलीविजन सेट जैसा दिखाई दे रहा है ना, जैसे हमारे घरों में टीवी होता है वैसा ही ये कंप्यूटर होता है।
राइट। ये जो मॉनिटर है कंप्यूटर का बिल्कुल टीवी सेट जैसा दिखाई देता है, बट ये बहुत सारे ऐसे ऐसे टास्क कर सकता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ टीवी देखने में टीवी जैसा है, बट ये बहुत ज्यादा टास्क कर सकता है एज कंपेयर टू अ टीवी। Computer runs with the help of electricity and it is used at many places like airport, supermarket, banks. तो कंप्यूटर बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हम सुपरमार्केट की बात करें या बैंक्स की बात करें, हर जगह कंप्यूटर यूज होता है। So computer is used everywhere, whether we talk about schools, colleges or any other educational institution, या हम किसी भी ऑफिस के बारे में बात करें, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, हर जगह कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर कहाँ क्या होता है और कहाँ कहाँ वो यूज होता है। Now let me tell you one important fact about computer. The first computer which was made, it was used to run on steam and not on electricity, and it was as large as a house. So friends, जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो स्टीम पर काम करता था, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पर नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि अब जो कंप्यूटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, पर जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो स्टीम पर काम करता था, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं। और वो कितना बड़ा होता था? एक घर जितना, बहुत बड़ा कंप्यूटर था। जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था ना, आप सोचो कितना बड़ा होगा, पूरे घर जितना बड़ा था वो कंप्यूटर। और अब कितने जरा से कंप्यूटर होते हैं कि हमारी एक टेबल पर ही आ जाते हैं। सो ये बहुत ही मजेदार फैक्ट मैंने आपको ये बताया है, इसे याद रखिएगा। So friends, this was our chapter, Let's Learn Computer. Here in this chapter, we learnt about various things such as difference between natural things and man-made things. Then we learnt about machines and that there are two types of machines, manual machines and electronic machines. Then I taught you about computer and uses of computer. I really enjoyed teaching this chapter. I'm sure you also enjoyed the video. So don't forget to like it. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.